Hello everyone, welcome to another round of Chitter Chatter. Today we're going to chit chat with the author of Anuradha Bhavan, Ganesh Lath. You know, he has been writing for decades now, and this was his first book. It was in Nepalese language and then adapted to English. And there's also other two books that he's written, and there is another book that he's already in working. So there's a lot that we need to chit chat. But we're going to have all chit chat majorly about Anuradha Bhavan. So let's see if he's here. And let's send him a request. Well, author is not here. He should join us really soon. In the meantime, you all can keep sending in your highs and hellos. And I have to thank you all for sending in your questions. All the writers out there, just तरह आप excited होके questions भेजते हैं, what to ask the new authors is really nice. And that's why I love reading many more books and sending and doing a lot more chit chats with a lot of authors. Well, somebody questioned me, what am I reading right now? I was reading Anuradha Bhavan and I have a lot of two reads already, which you're going to keep seeing. Some of them are romantic. Jitendra Pawar, wow, this is going to be an awesome episode. Yes, a writer is saying that. Well, this is something which I am very excited about to do this chit chat with him because this is the first time a Nepalese author is having a chit chat about his book. Yasir Usman, hello, how are you? And the author is here. Let's send him a request. Unnati, I would love to change my hairstyle, but I'm really liking it. Hello, how are you? Welcome Hello, to Chitter namaste, Chatter. namaste. Namaste. Thank you. पहले तो थैंक यू फॉर राइटिंग दिस लवली बुक जो आपकी फर्स्ट बुक है जो आपने नेपाली लैंग्वेज में लिखी थी और फिर हम इंग्लिश रीडर्स के लिए आपने अडेप्ट की है सो थैंक यू फर्स्ट फॉर दिस वन. It's my great privilege. So गणेश जी हमें बताइए इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर यू यू नो लाइक आपने जब ये बुक लिखी थी आपने अपने एक्नॉलेजमेंट्स में लिखा है कि आपने ये नेपाली लैंग्वेज में लिखी है एंड इट वाज अ ड्रीम कि ये इंग्लिश में हो इट शुड रीच वर्ल्ड वाइड. नाउ दैट द ड्रीम हैज कम ट्रू एंड इट्स बिकम अ रियलिटी हाउ डू यू फील? How overwhelming is zeal and joy, no? It's a kind of dream what I was thinking like it will be happen in my lifetime or not, but it happened. No? So it's well said that where is the will, there is the result. दैट इज ट्रू. जब आपने ये बुक लिखना शुरू किया क्या आपने सोचा था कि आगे एक ड्रीम थी बट क्या आपने सोचा था ऐसे होगा आपकी ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होगी? No, डेफिनेटली वो लाइफ में जितनी भी हम ड्रीम लेते हैं वो अल्टीमेटली उसमें आधी से ज्यादा यूं ही रह जाती है और आधी निकल जाती है. But I was much damn sure that if I would continue my effort, my book, my writings will be well populated and published in India, all over the world. My dream is little bit longer at present, but I think that one day I would be just known as an international author. Let's see when it will happen. We are sure that's going to happen because जो आपकी ड्रीम थी पार्शली तो रियलिटी में कन्वर्ट हुई है तो वी आर वेरी श्योर कि आपकी बहुत सारी और ड्रीम्स भी रियलिटी में कन्वर्ट होंगी. जब आपने ये बुक लिखना शुरू किया था इट वाज इन नेपाली लैंग्वेज हाउ डिड यू स्टार्ट राइटिंग दिस बुक दिस फैमिली ड्रामा? एक्चुअली नेपाली राइटिंग में मैं शुरू से ही ग्रामेटिकली पुअर रहा हूँ. In fact, in college days, I was just failured by just one number. So my Nepali writing was not very well, but I dared to start. कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो लिटरेचर से कनेक्टेड थे वो इनकरेज करते थे कंटिन्यू राइटिंग, डोंट थिंक अबाउट योर ग्रामर, डोंट थिंक अबाउट योर कंटेंट एडिटिंग एनीथिंग, जस्ट इट्स रबिश और गुड, कंटिन्यू राइटिंग इट. द क्रॉपिंग, द सेटिंग, द ट्विस्टिंग यू विल डू फॉर नेक्स्ट टाइम. मैंने वही किया कई बार उसको अमेंड किया, कई बार उसको क्रॉप किया, फिर ऐड किया. फिर मेरी कम्युनिटी जो है सोसाइटी बिजनेस की, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ ज्वाइंट फैमिली, और जिस नाइबरहुड में मैं बिलोंग करता हूँ वो भी बड़ी एक दूसरे से बिल्कुल होमली फील वाली. तो मैं मेरे चाइल्ड एज से ही देख रहा था लोगों के पेन, लोगों के अगोनी, सक्सेस, फेल्योर्स, और कई बैंड्स आए, कई कर्व्स आए, डाउन अप. तो दैट वाज रम्बलिंग विद इन माई सेल्फ. ये स्टोरी बन सकती है और ये बिजनेस कम्युनिटी के स्ट्रगल क्यों नहीं आती है बुक में, और सारी तो आती है. दैट वाज अ काइंड ऑफ रिवोल्ट विद इन माई सेल्फ. Then when I get opportunity to write down,
अनुराधा भवन में मैंने वो सब डालने का कोशिश किया जो मैंने खुद अपने चाइल्ड एज में रिव्यू किया, देखा या मैंने खुद अनुभव किया। तो इसमें जिस तरह बिरजू का कैरेक्टर है, जिस तरह उनको पढ़ाई करनी है बट ही स्टार्ट्स वर्किंग एंड इतनी सारी हार्डशिप्स आती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक, और मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती हूँ दैट हाउ ही ओवरकम्स दोस हार्डशिप्स। सो आपने यहाँ से, जैसे आपने कहा, आपने अपने अनुभव से आपने ये रियलिटी में, ये बुक में लिखा है, फिक्शन लिखी है, बट अ लॉट इज टेकन फ्रॉम द पर्सनल लाइफ ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल। आपका कैरेक्टर बिरजू से कितना मिलता जुलता है? मेरा कैरेक्टर बिरजू से तो नहीं, बिरजू के लड़के से मिलता है। When I had been observing the struggle, the fights and up downs of my parents, just I was amusing how they are doing such kind of. और मेरी मम्मी जो माँ है वो हमेशा अपना स्ट्रगल स्टोरी सुनाती थी कि इस तरीके से हम लोगों ने ब्रॉटअप किया, तो वो एक कहीं सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन मेरे अंदर बनता था कि नहीं, ये तो एक जो अनसंग हीरो हैं हमारे पेरेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें वो लाना है, पिक्चर में लाना है। और ऐसी नहीं है मेरी फैमिली की स्टोरी है, हर फैमिली में जो अपने पेरेंट्स होते हैं उनके जो स्ट्रगल स्टोरीज होते हैं वो हो जाते हैं दफन। तो जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारी ही वो ग्लोरीफाई होती है, पेरेंट्स की बात नहीं आती। जस्ट लाइक हमारे प्राइमरी स्कूल के जो टीचर है जिन्होंने हमें अंगूठा पकड़ के, उंगली पकड़ के सिखाया, उनकी तो बात ही नहीं होती है, हमें हमारी बात होती है एमबीए के टीचर की जिन्होंने हमें मास्टर्स डिग्री दी। तो इस केस में मैंने ये देखा कि ये बिरजू का जो कैरेक्टर है मेरे पेरेंट्स में फिट बैठ रहा है या मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स में फिट बैठ रहा है। जो इंसिडेंट्स मैंने डिस्क्राइब किए ऐसे बिल्कुल ही एकदम वो हाफ हेजार्ड ड्रीमी नहीं है, इट्स हैपनिंग इन आवर टेरिटोरी, जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व वेरी शार्पली। और जो घटनाएं हैं किसी न किसी के फैमिली में किसी न किसी रूप में हुई है, जस्ट मैंने उसका जो कैरेक्टर्स के नेम्स है वो फिक्शन में डाल दिया ताकि कोई डिस्प्यूट ना आए, बट इट्स ट्रू स्टोरी। जब आपने लिखना शुरू किया, आपने कहा कि मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने एडिट किया, बट बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और आपको कहा कि आप वो सब मत सोचिए, आप सिर्फ लिखिए। वैसे ही आप न्यू राइटर्स जो आउट देयर हैं जिनको लिखना है पर उनमें हिम्मत नहीं है कि वो अपनी स्टोरी लिखें, अब उनको क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो कहूंगा बी अ ड्रीमर, अ डे टाइम ड्रीमर विथ वाइडली ओपन आईज, never think about nighttime dream. Whenever you start dreaming with widely open eyes, you tend to do it right now, and you want to get a destination. तो डेडलाइन दीजिए अपने ड्रीम को और उस पे अपना कैलेंडर बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, स्टार्ट हो जाइए और रिजल्ट की चिंता नहीं कीजिए। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। एट द एज ऑफ जस्ट 22 मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, नई घर बनानी है। नई घर बनानी, मेरे पुराने घर बहुत जर्जर हो गई थी, वो टूटने के कागार पे थी। बट मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने कहा सर एटलीस्ट 2 वर्ष लगेंगे, 2 वर्ष, 2 वर्ष लगेंगे। हाउ आई वुड टॉलरेट 2 years एंड ईच डे आई हैव टू गिव माई 24 hours, हाउ इट्स पॉसिबल? दैट वाज द पैनिक फॉर मी। बट व्हाट आई फेल्ट दैट इस डे वो निकल जाते हैं, एक एक दिन करके निकल जाते हैं, बस यू हैव टू बी कंटिन्यूड इन योर वर्क। 2 साल में मेरे घर रेडी हो गए। राइटिंग्स की भी कुछ ऐसी एक्सपीरियंस रही मेरी, मैं दिन का एक पन्ना भी कंटिन्यू करता हूँ, इट वुड टेक 365 days and 365 pages, so it's possible. But your writing should be continued. Don't just write now, it's very perfect time to judge when you complete it, but don't interrupt your journey, I think. आई थिंक आई टोटली अग्री विथ यू। मैंने अपनी बुक 2 साल पहले लिखी एंड तब से मैं सोच ही रही हूँ कि मुझे नेक्स्ट बुक लिखनी है, बट आई हैव बीन सो नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ। तो स्टोरीज काफी है दिमाग में, बट दैट डिसिप्लिन की एक पेज ही सही रोज लिखना है वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक ऑन दिस नोट आई एम गोना टेल एवरीवन आउट देयर कि अगर आपके पास स्टोरी है तो डिसिप्लिन लेके लिखना शुरू करो। डोंट थिंक ऑफ व्हाट इज गोना हैपन, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। So thank you for this motivational answers for all us writers out there. गणेश जी, जब आपने शुरू किया और आपने ये बुक लिखी, उसके बाद आपको बहुत अप्रिसिएशन मिली है एंड you've got the appreciation from everyone, even from the people one dreams of. तो वो वाली फीलिंग हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल, मैं एकदम बिगनिंग की ड्रीम शेयर करूंगा। हमारे
प्राइम मिनिस्टर, पास्ट प्राइम मिनिस्टर माधव कुमार नेपाल बीरगंज आए हुए थे। तो बहुत रिनाउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो आए हुए थे, मेरे पब्लिशर जो थे वो बोल रहे थे यार कोई ऐसा सेलिब्रिटी खोजो जिनके वजह से पब्लिक आए तुम्हारी बात सुनने को। मैं बिल्कुल न्यू था, मैं तो कमोडिटी मार्केट का आदमी, मैं तो जानता था मार्केट में माल कैसे बेचा जाए, ये बुक के विषय मेरे को आइडिया नहीं था। पब्लिशर हिमसेल्फ वाज वेरी न्यू पर्सन। वो बार बार बोलता आप तो मेरे पिता की उम्र के हो यार, कोऑपरेट करो। मैं बोलता एक तो मैं न्यू ड्राइवर, एक नई गाड़ी भी आपने दे दी, नया गाड़ी नया ड्राइवर, दैट्स पैनिक फॉर मी। बट मेरे फ्रेंड माधव कुमार नेपाल से जब मुलाकात करवाया, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपकी ये लॉन्चिंग में आऊंगा और बिल्कुल पूरी समय दूंगा। देन सेकंड क्वेश्चन वाज विथ हिम दैट विल यू रीड और डायरेक्टली कम, इफ यू आर नॉट रीडिंग द व्हाट्स द यूज ऑफ योर कमिंग। तो बड़े हंसने लगे, बोला आपको मालूम नहीं है पॉलिटिशियन के अलावा मैं लिटरेचर में भी इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं बहुत पुस्तक से प्रेम करता हूँ। तो मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ, मतलब ये लीडर्स तो ऐसे ही कहते होंगे। लॉन्चिंग वाले दिन में उन्होंने लगभग 5 मिनट अर्ली वहां पर पांव रखा और जो बुक लेके आ रखा था उन्होंने सारे पेजेस में रेड कलर के इंक से मार्किंग कर रखी थी। उन्होंने बोला यार तुम कैसी बुक दे दी, मैं तो आते समय सारे रास्ते फ्लाइट में, सारे रास्ते वो गाड़ी में इसी पढ़ता रहा, टिक लगाता रहा। एक मारवाड़ी का बच्चा वो बिजनेस कम्युनिटी से इतनी गहराई से कैसे लिख सकता है। मैंने बोला मेरे को लगता है ये बटरिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है। पूरे लॉन्चिंग पीरियड में मैंने जितने लिटरेचर के वेटरन प्लेयर्स बुलाए थे, वो सारे वेटरन प्लेयर्स में से थोड़े ही बहुत प्लेयर कुछ कमेंट दिया, उन्होंने पूरी ईमानदारी से पढ़ा नहीं। बट पास्ट प्राइम मिनिस्टर ने पूरी 1 घंटे की पीरियड ली, 1 घंटे की पीरियड ली और पेज वाइज उन्होंने जो डिस्क्राइब किया बुक्स के विषय में, प्लस भी माइनस भी, जहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, जहाँ प्लॉट्स में कहीं गैप दिख रहे थे, कहीं फिलर्स ज्यादा थे, उन्हें जिस तरीके से डिस्क्राइब किया और पूरी 1 घंटे की पीरियड पॉलिटिक्स का पी वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने। दैट्स व्हाट क्वाइट मिसमराइजिंग एंड इनकरेजिंग फॉर मी। मैंने निकल के बोला कि मेरे लिए आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, मेरे लिए आप मेरे गुरु। कुछ दिनों पहले वो भी बीरगंज आए हुए थे, फिर मैं मिलने गया था उनसे। उन्होंने बोला अभी तक कितनी पुस्तक निकाल ली है। मैंने बोला वो 4 तो हो गई है। बोला यार अनुराधा भवन की टक्कर की तो नहीं निकाली। उन्हें अभी भी वो स्टोरी याद है। अच्छी पार्ट क्या है, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते उस पार्टी की पूरे नेपाल में लाइब्रेरी है। तो उधर के फ्रेंड मेरे को फोन करते हैं आज भी, यार तुम्हारी बुक देखी मैंने लाइब्रेरी में रखी, किसने भिजवा दी। मैंने बताया यार तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने भेजी है, मेरे तो नहीं भेजी। 50 कॉपी उन्होंने कम्प्लीमेंट्री में मांगी थी, मैंने दे दी। उन्होंने सब जगह, कई जगह तो उन्होंने वो किताब की वो कॉपी लेकर के मूव करके उसके कोट्स निकाल के अपनी स्पीच में भी दोहराया। उन्होंने पर्सनली मेरा नाम लेके बोला कि एक बिजनेस कम्युनिटी का एक लड़का है जो नेपाल के पेन को समझता है, व्यापारियों को। दैट वाज क्वाइट इनकरेजिंग फॉर मी। So it would be was protected within my heart for lifelong period. Well, यहाँ पे आपके फैंस कह रहे हैं ऑफिशियल नीरज_सिंह says inspirational story. Big fan of you, sir. Praful Avate says, Mr. Kushal Jain 25 says hi. A_Rakesh says really motivational. Sham Singh 5487 says very good. A_literary_bridge_ says so true, sir. Words of wisdom. A_Rakesh says very very good, sir. Seriously बहुत अच्छी बुक है. And many more comments are flowing in. But गणेश जी मुझे एक बात बताइए, अभी जो आपकी नेक्स्ट बुक रिलीज होने वाली है which you're working on, क्या वो अनुराधा भवन के टक्कर की है? Because the way I'm reading this book, even I am questioning the same question कि इस टक्कर की बुक है कि नहीं? No, definitely as good as I have been trying, it would be my best creation. But every mother think that his kid is best creation. It's up to public and the reader who will decide it's good or bad. But मैं पिछले 7 सालों में जो लर्न किया ये लिटरेचर के सेक्टर में, मेरी मिस्टेक्स को मैंने रिव्यू किया, आप लोगों के माध्यम से जो मेरी वीकनेसेस, एरर्स मुझे मालूम, सारी की रेक्टिफिकेशंस मेरी नेक्स्ट बुक में होएगी। और मैं कुछ नया देना चाहता हूँ। एक ऐसे बुजुर्ग की स्टोरी है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है बट मेंटली ही इज इन डिप्रेशन। ही हैज एवरीथिंग बट नथिंग एंड शी कोइंसिडेंटली ही कम्स इन कांटेक्ट ऑफ अ लेडी फ्रॉम इंडिया जस्ट हाफ ऑफ द एज ऑफ हिम। वो स्टोरी को बड़ा इंटरेस्टिंग फिर मैंने वो अपने ब्रह्मांड से जोड़ने की कोशिश की है।
जो थ्योरी है ब्रह्मांड के स्पेस की, हमारे लाइफ के जो एटॉम्स है, वो बॉडी के एटॉम्स है, उससे मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की। आई थिंक इट वुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड लर्नेबल चलिए, आल्सो। बेस्ट विशेस फॉर चमादान। जिस तरह आपने स्टोरी हमें छोटे में बताई है, लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उसके लिए भी हम होपफुली चिटर चैटर करेंगे और वी ऑल बी एक्साइटेड टू रीड द बुक। बट बिफोर आई गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल, इफ यू नॉट रेड अनुराधा भवन, देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग समथिंग। और अगर आपको फैमिली ड्रामा पसंद है तो ये बुक आपके लिए है। जब ये बुक अडेप्ट हो रही थी, कोई और आपके काम पे काम कर रहा था, एंड यू नो देयर इज अदर राइटर जो आता है, आपकी बुक अडेप्ट कर रहा है डिफरेंट लैंग्वेज में, तो आपके क्या फियर्स थे? कैसा रहा काम करना उनके साथ, महेश पौडल के साथ? No, Max Podel is veteran author. He is very renowned and he got a lot of awards from different country. पहले तो 6 महीने तक उनको मैं फॉलो करता रहा, यार मान जाओ किसी तरीके से मेरी बुक को ट्रांसलेट कर दो, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, कल हो सकता है मेरी स्टोरी वो निकाल के ले चेंज जाए, कर अपनी लें। स्टोरी बना। हाँ, तो यार कर दो, जैसे भी मान जाओ। वो बार बार बंदा बोल रहा था मैं बहुत इंगेज हूँ, मैं बिजी हूँ। बंदे के साथ में एक ट्रेजेडी भी हो गई, तो वो लगभग मेरे को बुक लिखने में उन्होंने लगभग 3 साल लगा दिया। बट आई केप्ट पेशेंस, आई नेवर चेंज द डिसीजन। महेश पौडेल इज द बेस्ट फॉर मी। कई फ्रेंड ने बोला, मैं उन पे ट्रस्ट किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो प्रॉब्लम तो आई, बट आई कंटिन्यूड कीपिंग माई पेशेंस। एज अ राइटर, पेशेंस रखना कितना जरूरी है, स्पेशली व्हेन द बुक हैज टू गो फॉर पब्लिशिंग? It's a kind of examination of patience. If you are meditator, then okay. If you are not meditator, writing a book is a kind of meditation. If you are being impulsive, if you are in hurry, then you are doing thousands of mistakes. आपको 100 बार तो अपनी राइटिंग्स पढ़नी पड़ेगी, वो भी गैप देके, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ओन मिस्टेक। अदरवाइज ये आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या मिस्टेक्स कर दी। हमें बड़े फ्रैंकली स्पीकिंग में करता हूँ, मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मेरी मिस्टेक निकल जाती। इवन अभी ये इंग्लिश एडिशन में जो निकली, मैं पढ़ना शुरू किया तो ओ माय गॉड, फर्स्ट पेज में मिस्टेक निकल गई। तो ये जितनी बार रिव्यू करेंगे मिस्टेक निकलेगी, प्यूरिफिकेशन होगी। देन यू शुड हैव पेशेंस विद पब्लिशर, पेशेंस विद एडिटर, कंटेंट एडिटर, रीडर, डिजाइनर, इवन विथ योर रीडर्स आल्सो। They will say good, they will say bad. You have to judge which should you pick for yourself. कई किस्म के कमेंट्स आएंगे, ये आपकी अपनी इंटरव्यू है, क्या उसमें से ले सकते हो, बट यू शुड हैव अ पेशेंस लाइक अ मेडिटेटर, अदरवाइज यू विल बी स्पॉइल्ड। आप पहले कराटे करते थे, ब्लैक बेल्ट, एंड देन विपासना मेडिटेशन, तो ये चेंज कैसे हुआ? ये संगत की असर है। वो मैं जिस जमाने में यंग था, ब्रूसली का जमाना था, ब्रूसली वाज गॉड फादर फॉर एवरीवन। मेरे रूम में वो नैन चाकू बोलते हैं, वो नैनचा स्टिक, उसकी वो एक रहती थी सेट, ब्रूसली की पिक्चर रहती थी, ब्रूसली की सारी पिक्चर देखते थे हम लोग, इंटर द ड्रैगन, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन, वो सारी पिक्चर इम्बाइव होती थी। और वन डे आई वुड बी मार्शल आर्टिस्ट। ये दिमाग, नेपाल में बैन था मार्शल आर्ट, वी आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस मार्शल आर्ट। हमारे एक टीचर थे टी.एस. राय, जो सिंगापुर मिलिट्री से रिटायर्ड होकर नेपाल आए हुए थे। वो नेपाल के बॉर्डर रक्सौल, मतलब मेरी नाइबरिंग सिटी है इंडिया की रक्सौल, वहाँ ट्रेनिंग देते थे, मैं वहाँ जाता था। तो एक चैलेंज उन्होंने कर दिया कुछ महीने बाद में कि ये मारवाड़ी कम्युनिटी से कौन कौन बंदे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग में आए हुए हैं, हाथ उठा दे। मैंने उठा दिया। बोला, उन्होंने फर्स्ट वर्ड ही ये यूज किया, यू कांट लर्न कराटे, इट्स different kind of art, it's not capacity within your Marwadi community, you are coward community। तो मेरे को टच कर गया बात दैट। वो जो बोलते हैं ना, कभी कभी आदमी को चुभना भी चाहिए, वो चुभन ने मेरे को आगे तक ले गया। मैं ऐसे स्थिति में भी पुगा लास्ट में। वही मेरे गुरु जो गवर्नमेंट से फाइट करके गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप में मुझे सिंगापुर भिजवाया फर्दर ट्रेनिंग के लिए। ब्लैक बेल्ट मेरे को सिंगापुर से, इवन गवर्नमेंट ने मेरे को जॉब दिया कोच का। लगभग 2-3 साल में सरकारी सैलरी में सरकार का कोच बन के वर्क किया। इवन नेशनल लेवल का मैच भी पार्टिसिपेट करने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला। बट अगेन दैट वाज नॉट ब्रेड एंड बटर फॉर मी। व्हाट काइंड ऑफ सैलरी आई वाज गेटिंग फ्रॉम देम, इट वाज नॉट इनफ फॉर मी। अल्टीमेटली मेरे को बिजनेस में आना था। बिजनेस में आया तो सर्टेन एज के बाद में आपके बॉडी के केमिस्ट्री में कुछ चेंज आते हैं, थॉट प्रोसेस में। आई थिंक
वो विपස්සना में मेरे को पुश करने के लिए वो केमिस्ट्री ने वर्क किया होगा। मैं अपने सोसाइटी में बिगड़ा हुआ लड़के में काउंट होता था, गैंग फाइट होती थी हमारे यहाँ, गैंग, मैं एक गैंग का लीडर होता था, दूसरा एक गैंग का लीडर होता था। और नाउ पीपल आर सरप्राइज, तुम ऐसे कैसे थे और अभी कैसे हो गए, गॉड नोज व्हाट हैपेंड विथ मी। बट राइट नाउ आई एम टोटली ऑनेस्ट पर्सन एंड peaceful person, never fight with anybody, never talk in loud noise with anybody. चलो, It's because of ग्लैड, ये Vipassana. बहुत अच्छा चेंज आया थैंक्स टू विपासना मेडिटेशन। आई एम श्योर घर वाले और सब कहते होंगे कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चेंजेस दैट हैव हैपेंड। घर वालों को तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते मैं, बोले ज्यादा ही शरीफ हो गए यार, मिर्च भी नहीं खाते अब तो। वो तो इशू रहेगी घर वालों की। बुक बेकर्स के साथ कैसा लगा काम करके विद सुहेल माथुर एंड द बुक बेकर्स? Fantastic. Suhail Mathur himself is a great author, bestseller. He knows where shoe pinches. वो एक्सपीरियंस है, जो पैसेज में रन कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी उस पैसेज से गुजर चुके। देन ही इज वेरी एक्सपीरियंस, ये करो, ये ना करो, ये इस वक्त ठीक रहेगा, ऐसे ठीक रहेगा। ही इज लाइक गाइड टू पी। और पूरी की पूरी बुक बैकर टीम ही बैकिंग में लगी हुई है। इट टुक ऑलमोस्ट 2 years, बट डेफिनेटली उन्होंने जो रिजल्ट दिया वो रिमार्केबल है। मैं सैल्यूट करता हूँ द बुक बेकर, और मैं विश करता हूँ बुक बेकर वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो जावे, और उनकी पॉपुलैरिटी इस तरीके से हो जावे कि मेरे को प्राइड फील हो, आई एम एसोसिएटेड विद बुक बेकर। वाओ, दिस इज समथिंग हम सब भी विश करते हैं एंड मे ये विश फुलफिल हो बिकॉज द बुक बेकर्स इज रियली नाइस एंड एज अ लिटरेरी एजेंट आई थिंक वर्किंग विद सुहेल इज समथिंग दैट वी ऑल एंड ऑल द पीपल हु कम ऑन चिटर चैटर अग्री। लॉक्सी हॉल ने आपकी बुक पब्लिश की है, उनके बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? Actually, what's happening? They are fantastic guys, no doubt. In particular, in Nepal, the dealing with publisher between author and publisher and India quite different. So at first stage, it was quite unique and very spellbounding. But gradually, I understood the terms and that mechanism. Right now, I am enjoying their relationship and partnership, you can say. And they are quite professional, quite experienced, and they are man of commitment. So I am very much glad, happy with them. आपके बुक में आपने एक beginning of the book there is a mention where you say life is like a kite. True. Do you believe in that totally as an author? What is life for you? Life is like a journey for me. Particular for me, life is a kind of journey. You start from zero, from creation, and you end with degeneration or decreation, you can say. And in the meantime of your journey, you have to prove yourself that you are a good traveler, not elbowing down anyone else. You are choosing your own path, you are keeping your own spirit, and you are just proving yourself as you are true human being. But इस बुक में मैंने काइट की एक्सपीरियंस दी एक बुजुर्ग के मार्फत। काइट में जब थ्रेड लगा रहे और आप जब उसको कंट्रोल में रखते हो डिसिप्लिन में, तो काइट आकाश में उड़ेगी। जैसे थ्रेड से हट जाएंगे, काइट अपने पैसे से हट जाएगी, डिसिप्लिन से हट जाएगी, सरवाइव नहीं करेगी। लाइफ की भी कुछ सर्टेन मोरल, सर्टेन एथिक्स, सर्टेन आपके वो डिसिप्लिन ना हो, तो कंसिस्टेंसी ना हो, तो काइट की तरह लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगी। मैंने उससे कोरिलेट करने का कोशिश किया। काइट की हाइट जितनी ऊपर जाती है या इंसान की हाइट जितनी ऊपर जाती है, रिस्क भी उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। इस बीच में कई आएंगे आपको काइट से टक्कर लेने वाले, आपके थ्रेड को कट करने वाले, स्पॉइल करने वाले। इन द मीन टाइम इफ रेनी सीजन इज कमिंग, स्टॉर्म इज कमिंग, अगेन यू आर इन रिस्क। सो लाइफ इज लगभग वो सिमिलर टू काइट। इन योर लाइफ ऑल्सो समथिंग हैपनिंग। आप एकदम अपेक्स पे चल रहे हो सक्सेस के, देन योर एनिमी, द क्वांटिटी ऑफ योर एनिमीज वुड बी इंक्रीज एंड अप एंड डाउन वुड बी इंक्रीज, एंड यू हैव टू फेस सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। वैसे मैंने काइट्स के साथ में लाइफ को कोरिलेट करने का कोशिश किया एक कैरेक्टर के माध्यम से। I would like to read for the viewers what he's written. Life is like a kite, should withstand sun and rain, wind and storm, and not while rowing around in the open sky, or else life loses its essence. You fly it or not. A kite is made from paper and longevity has no certainty.
Very true. So this is Very. exactly what I totally agree with. And like you said, जिस तरह आपने explain किया, I thought हमारे viewers को पता चलना चाहिए कि ये kite के बारे में जो हम discuss कर रहे हैं, that how important it is. And the more you'll read this book, you all will totally understand what kite is. तो गणेश जी बताइए, what is your favorite book that you have enjoyed reading in COVID times? Yeah, a lot of books. Whenever I get time, I start reading. Particularly in traveling period, I complete two, three, four books. If it's enjoying, if not enjoying, then it's very hard to complete. I just keep it in my drawer. I never open it. तो मैं ये फणेश्वर दास रेणु है हमारे ये सीमांचल क्षेत्र के, पार्टिकुलरली हिंदी में लिखते हैं, मैं उनका फैन हूँ। राही मशरूम रजा जो फिल्म में भी काफ़ी उन्होंने वर्क किया, उनकी एक मैंने कलेक्शन पोएम की पढ़ी थी जमाने पहले, इतनी इम्प्रेशन अच्छे जमी, मैं उनकी बुक पता लगाता रहता हूँ अमेजोन पे, या जब इंडिया जाऊँ तो निकाल कर ले आता हूँ। कई हैं वैसे राइटर, ये सरला मूर्ति की मैंने एक बुक पढ़ी थी, बिगनी में किसी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, व्हेन आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। उसके बाद में मैंने कई बुक उनकी पढ़ी, बड़े सरल शब्दों में, बहुत ही हाइजीन तरीके से उन्होंने छोटी छोटी गांव की स्टोरी को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, क्वाइट इम्प्रेसिव। रॉबिन शर्मा की मैंने 3-4 बुक पढ़ी, मोटिवेशनल बुक्स, द monk who sold his Ferrari, Leader Without Title, Who Will Cry When You Die, that was quite touching। हाँ, सिडनी शेल्डन की खूब बुक पढ़ी, दैट वाज थ्रिल स्टोरी टाइप ऑफ क्राइम टाइप, बट आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम सिडनी शेल्डन ऑल्सो। ये है। अभी तो मेरे पास में कुछ नेपाली ऑथर की भी बुक है, और नेपाल के ऑथर भी आज के दिन में वर्ल्ड क्लास राइटिंग में आ गए। विशेषर प्रसाद कोइराला जो पास्ट इंस्टीट्यूट, बहुत रिनाउंड लिटरेचर में वो इन्वॉल्व है, उनकी बुक्स मैं पढ़ता हूँ, दैट्स वेरी गुड। रिसेंटली एक बुक महारानी आई है, जिन्होंने नेपाल का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, मदन पुरस्कार, उससे उनको नवाजा गया। वो नेपाल की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं। नेपाल में जैसे इंडिया में कई राजा महाराजा थे, रजवाड़े थे, नेपाल की भी कहानी, वो स्टोरी बिल्कुल यूनिक लैंग्वेज में, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी महात्मा महात्मा गांधी बनने से पहले जो थे, पहला गिरमिटिया, लगभग 900 पेज की होनी चाहिए, बड़ी मोटी है, और मोहनदास करमचंद की गांधी है, महात्मा गांधी की कहानी, वो पढ़ रहा हूँ मैं। दैट्स वेरी थिक बुक, इट विल टेक टाइम। And that book is how he was before he became the Mahatma Gandhi. राइट। अगर अनुराधा भवन स्क्रीन पे बने, which actor would you like to cast in it? Never thought about it, but I had seen a movie ईश्वर ऑफ अनिल कपूर, सो फार आई रिमेम्बर। जब जब वो मूवी आती है तो मेरे को लगता है बिरजू कैरेक्टर उसके अंदर घुस गया जी। वो ऐसा लगता है बिरजू बेचारा काश वो अनिल कपूर के तरह ही होता। तो कुछ उस टाइप की मूवी जब आती है तो कैरेक्टर को देख के लगता है ये अच्छा प्ले कर लेगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। थैंक यू गणेश जी फॉर दिस लवली टाइम फॉर चिटर चैटर। हमें बड़ा मजा आया आपकी बुक पढ़ के, आपके साथ चिट चैट करके, एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर दिस बुक। And people, if you all have not bought this book now, please go on Amazon and order your copy right now. I'm sure you're going to really enjoy the drama. And also best wishes for Chamadan. I'm sure वो भी बहुत अच्छी होगी जिस तरह आप looking forward for that too. Thank you. It's great privilege for me. I am overwhelming, and thank you for such kind of your grand event. And I am very much privileged that you type of celebrity is giving time to me. I am very much happy, very much pleased, and through you, I would like to express my gratitude to the book backers and the Loxley Hall publications. Thank you, sir, for the kind words, and have a good weekend. Stay safe, and best wishes again. Thank you. Namaste. Namaste.